माशाल्लाह। इनका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मैसेज आज का कि वो अदब, वो छोटा हो तो उसका अदब, वो औरत हो तो उसका अदब, वो बूढ़ा हो तो उसका अदब। तो सबसे ज़रूरी सबक जो उन्होंने दिया कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान है, तुसी वेख रहे हो यूट्यूब चैनल फानी व्लॉग्स। अज शाम ਨੂੰ 7 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, 7:30 और 7:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲੇ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਿਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਲੈਟਰੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਆਖਦੇ ਲੈਟਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 10 ਯੂਰੋ ਹੈ। ਵਾਹਵਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਦੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਮਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟ ਕਿਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਚੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਾਪਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਹਫਤਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਧਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਯਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜਲਦੀ 308-7 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੈਟਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। Primero de todo queríamos presentar, ha venido un invitado especial desde Horta, el templo Naqshbandi Sufi. Sheikh Abdul Wadud, que viene desde allá, le hemos invitado. Luego nos dará una pequeña reflexión, nos enseñará algunas cuantas cosas sobre el Islam. Espero que हुए थे और मैं प्रोफेसर हूँ। और मेरी क्लास के अंदर पहले ऐसा होता था कि सिर्फ एक बच्चा मुसलमान होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास के अंदर 5 या 6 मुसलमान बच्चे होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला की रात ने फरमाया कि जो बंदा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा उसको मेरी मोहब्बत का नूर नसीब होगा और मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। आखिर पर इन्होंने फरमाया कि मोमिन वो है जिसके दिल के अंदर एक कला हो और उस कले के अंदर, उस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। आखिरी बात फरमाई कि आप में से मोमिन वो है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला वो है जो बड़ों की इज्जत करता हो। जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, जो लोग बड़ों की इज्जत करना छोड़ देते हैं उनका नाम सफ़ा और हस्ती से मिट जाया करता। जो बाकी रहना चाहे, इस्लाम बाकी रहेगा, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम बड़ों की इज्जत करें। Así que la primera lección, si queremos atapio, सबसे पहला सबक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, बड़ों की। आगे वाली बात बड़ी दिलचस्प बताई, शायद आप लोगों को हो दिया हो। फरमा रहे हैं कि बड़ा जैसा भी हो, बड़ा वो जुम्मा पढ़े ना पढ़े, वो जुम्मा पढ़े, लेकिन बड़ी पटी की बात है कि सिर्फ सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का हया नहीं, सिर्फ नमाजी बुजुर्ग अपने से उम्र में कोई भी बड़ा हो। फरमा रहे हैं कि जिस दिन हमने बुजुर्गों की कदर करना छोड़ दी, इज्जत करना छोड़ दी, हम समझे इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ध्यान कर रहे हैं कि
آج جوان مسجد میں ہیں طاہر سلطانی کی ایج کے 10 سال کے 12 سال کے. ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے اس ادارے کو, والدین کو, ہم سب کو, کہ یہ مسجد جو اس کی عمر بڑھے یہ مسجد کے اور قریب ہو, مسجد سے دور نہیں ہونا چاہیے. 15 سال عمر ہے, یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے, 10 سال ہے, 30 سال کا ہو تو مسجد میں آنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو. اس کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے جنہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیا اور ایسی کوشش نہیں کی کہ اس کا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا میسیج آج کا کہ وہ ادب, وہ چھوٹا ہو تو اس کا ادب, وہ عورت ہو تو اس کا ادب, وہ بوڑھا ہو تو اس کا ادب. وہ سب سے ضروری سبق جو انہوں نے دیا کہ آپ لوگ اکثریت یقیناً ہم مجبوری کے تحت سارا دن کام میں بزی ہوتے ہیں, کام کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے کام میں بزی ہونے پر کو ریزن بنایا اور آپ لوگوں نے اپنی عورتوں کو دین سکھانے کے لیے مسجد نہ بھیجا تو آپ کے بچے کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتے. آپ دیندار ہیں, اس سے آپ کا بچہ دیندار شاید بنے نہ بنے, لیکن آپ کی ماں بہن بیٹی دیندار ہیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد دیندار ضرور بنے گی. اور اگر آپ کی اولاد دیندار بنے گی تو ہماری سب سے بڑی اسپین کے اندر کامیابی بھی یہی ہوگی. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے دین پاک کا پیغام پہنچا رہے تھے. بلا تخیر میں ابھی ملتمس ہوں ہمارے مہمان منہاج القرآن انٹرنیشنل لندن کے ڈائریکٹر حضرت علامہ صادق قریشی صاحب, ان کی خدمت میں گزارش ہوں کہ وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہم نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بیٹے کی شادی ہو, بھائی کی شادی ہو, دوست آگے بھنگڑا ڈالتے تھے, ان سے پوچھو یہ بھنگڑا کیوں ڈالتے ہو, وہ کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں میرے دوست کی شادی. خواتین جمع ہو کے وہ بھی گیت گانا شروع کر دیتی ہیں, اور یہ سنت کی ہے. حضور علیہ السلام جب بھی نکاح پڑھاتے تو مسجد کے اندر پڑھاتے, اور ایک جگہ آپ آ رہے تھے, کچھ لوگ آ رہے تھے شادی سے واپس, آپ نے فرمایا کوئی تمہارے پاس دف نہیں ہے جو دف بجاتا اور اس کا اعلان کرتا, شادی کو ذرا خوشی سے منایا کرو. کیونکہ آقا علیہ السلام جب مدینہ پاک آئے تو مدینہ پاک کے بچے, مدینہ پاک کی عورتیں, مدینہ پاک کے لوگ سارے نکل آئے تھے, اور وہ سارے مل کر کیا کہہ رہے تھے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. جیسے آپ کے جشن میں کونسل یہاں کی تھی اور دیگر لوگ تھے, خدا کی قسم میرا ایکسپیرینس ہے جو حضور کے میلاد میں شامل ہوا, اللہ رب العزت نے اس کو ترقی عطا کری, وہ چاہے آزما لے. تو کرسچن بھی بیٹھے ہوئے تھے انویٹیشن پر, اور وہاں کی ٹریڈیشن کے مطابق فائر ورک ہوا. کیا ہوا؟ فائر ورک ہوا. تو فائر ورک کے اندر ایک گولی جو چلی تو 11 سال کی ایک کرسچن بچی تھی, اس کی کمر میں لگی, جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی ایکسیڈنٹلی. اس کو اٹھا کر ہاسپٹل میں لے گئے. تو جو ہاسپٹل تھا اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم سے دور ہے, اس کو آپ امریکن ہاسپٹل میں لے گئے. وہاں سے اٹھا کر امریکن ہاسپٹل میں لے گئے. ڈاکٹر بڑے پریشان ہوئے, دیکھتے رہے, اور انہوں نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا, کم ٹو یور ڈاٹر اینڈ سی ہر ان فیئر ہیلتھ. آخری بات اس سے کر لو, بس اب اس کا وقت جو آ چکا ہے, یہ آگے زخم بہت گہرا ہو گیا. اس کی ماں جب آئی تو آنے سے پہلے, کمرے میں داخل ہونے سے پہلے, اس کی ماں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سنا ہے کہ آپ پروفٹ ہیں, تو پروفٹ کو اللہ نے میریکل دیے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا میریکل دکھائیں, میری بیٹی کو پھر سے حیات عطا کریں. دیکھیے ہم آپ کی سیلیبریشن میں آئے تھے. اس کی ماں نے اپنی زبان میں یہ شکوہ کیا. اب اس کی ماں جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس کی بیٹی جو اٹھ نہیں سکتی تھی وہ بیٹھ کر بیٹھی ہے, کہتی ہے ماما ڈونٹ کم ٹو می, ڈونٹ کم ٹو می. اس نے کہا بیٹا
आप मुझे कह रही है कि ना आऊं, मैं तो आपको मिलने के लिए आई हूं। उसने कहा मामा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came to my room and he cured me। उन्होंने मुझे ठीक कर दिया और मैं ठीक हो गई। ये है बरकत जो हुजूर की बात करता है। तो दोस्तान मोहतरम, जैसे शेख ने कहा कि मीराद मनाकर हम सीरत को सीखते हैं, तो लिहाजा सीरत को जरूर सीखना चाहिए। अब इसके लिए मैं दो बातें कर रहा हूँ। एक निस्बत की मिनहाजुल कुरान के साथ जुड़ जाता। ये मिनहाजुल कुरान का मिशन पीस एंड इंटीग्रेशन का मिशन है, मोहब्बत का मिशन है, प्यार का मिशन है, अमन का मिशन है, इल्म फैलाने का मिशन। पूरी दुनिया के अंदर बेरोज होकर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए इल्म का फरोग, अमन का फरोग। ये बैठे हैं पीस एंड इंटीग्रेशन के मोहम्मद इकबाल साहब, आपकी मारूफ शख्सियत, पीस एंड इंटीग्रेशन का मिशन। हर किसी से प्यार करो, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, कि आदमी सबसे अच्छा वो है जो इंसानियत के लिए मुफीद और फायदेमंद है। और दूसरी बात सुनना हकीकत है, तो वो जाके कोपर लाजमी लें। ये ना सोचे कि मैंने लिया मेरा कौन सा निकलना है। जो जाएगा उम्रा करने के लिए इस खुशनसीब का नाम निकलेगा, इंशाल्लाह इन्हीं पैसों से उसका टिकट खरीद के उसके हवाले किया जाएगा। तो इस हवाले से भी आप ये कार्य खैर है, इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। टोटल 3 उम्रे के टिकट होंगे, तो एक टिकट के पैसे आप में से कोई बंदा उसको खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकता है। अभी नमाज़ों की इंशाल्लाह नमाज के बाद हम कुछ अहबाब ने मिनहाजुल कुरान की लाइफ मेंबरशिप ली है, उनको स्नात पेश की जाएगी। दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह कुरान नाज़िल होगी उम्रे को फर्ज की, और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़ मुबारक का इंशाल्लाह हम दीदार करेंगे अदब के साथ, दुरूद पाक पढ़ते हुए, और फिर अहबाब लंगर लेकर अपने घरों को रवाना हो सकते हैं। कोशिश एक अलावा कूपन है, उसकी टिकट 50 यूरो थी। वो मिनहाजुल कुरान हॉस्पिटल के जो अहदेदारान हैं, उन्होंने अपनी ख्वाहिश के लिए कि हम अपना नसीब चेक करना चाहते हैं, तो वो एक कूपन अलावा है जिस वो छोटे बॉक्स में है, उसकी टिकट 50 यूरो से 100 यूरो तक थी। तो वो कूपन अलावा है बिल्कुल, ताकि किसी के जेब में ना जाए कि वो अलावा क्यों था। इसकी मैंने क्लियर कर दिया कि वो मिनहाजुल कुरान हॉस्पिटल के जो अहदेदारान हैं, उन्होंने 50 यूरो का किसी ने लिया, किसी ने 100 यूरो का कूपन लिया, तो वो अलावा होगा। और इसमें जो आप लोगों ने 10 यूरो का कूपन लिया वो इसके अंदर होगा। इसमें से 2 बंदों के इंशाल्लाह अभी कूपन निकलेंगे, तो जिन खुशनसीबों का वो नाम होगा तो इंशाल्लाह माशाल्लाह बता रहे हैं कि एक जो टिकट है, दो कूपन यहाँ से निकलेंगे। उसमें से एक टिकट जाहिद साहब जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं उनकी तरफ से है, वो सारी की सारी अदायगी वो करेंगे। अल्लाह बाकी को जज़ाए खैर अता फरमाए, और मालिक उनको उनके रसूल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क ख़ैरात की दौलत नसीब फरमाए। और एक कूपन वो है जो आप लोगों ने 10-10 यूरो करके जमा किया, तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि किस खुशनसीब के नाम और उनका निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाम है खुशनसीब मोहतरम रियासत अली साहब, खड़े हो जाएं। ये उनके नाम का कूपन निकला है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आपकी अभी एक पर्ची और निकलेगी, एक वो बच्चे का हाथ यहाँ तक पहुँच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पर्ची खुल चुकी है। खुशनसीब का नाम है सफदर हुसैन वल गुलजार हुसैन। उनकी कूपन नंबर उनका 36, वो तशरीफ लाएँ और उनका कूपन निकला है। माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माशाअल्लाह। मालिक करीम, ये तड़प की बातें हैं, शौक की बातें हैं। मालिक करीम इनका जाना कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह मालिक करीम हम सब की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्टर्स की हाज़िरी नसीब फरमाए। सारी
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मोहतरम डॉक्टर कदीर साहब इधर ही बैठे हुए। देखें ये हैं जज्बे। तो डॉक्टर कदीर साहब को शायद आप लोगों में से कोई ना जानता हो। मिनहाजुल कुरान के जितने इंतज़ामी काम हैं, भाग दौड़ वाले सबसे ज़्यादा पावरफुल जितने भी इंतज़ामी काम हैं, उन कामों को करने के लिए मैं शाहिद हूँ इस चीज़ का। जो बंदा सबसे आगे होता है उसका नाम डॉक्टर कदीर खान है। अल्लाह पाक की ज़ात ने उनकी देखें इस दीन की अपने इदारे के अल्लाह पाक ने अपने घर की खिदमत के सिलसिले में अल्लाह पाक की ज़ात ने उनका नाम निकाला है। मालिक करीम की बारगाह में दुआ है कि वो उनका जाना कबूल फरमाए और मालिक करीम हम सबको भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे अक़दस पर हाज़िरी नसीब गुज़ारिश है आप सारे अहबाब इस तरफ तशरीफ लाएंगे, सारे जितने भी हैं इधर से लेकर स्टार्ट तक। हम इधर से ज़ियारत करके गुजरेंगे, हम लाइन बनाकर गुजरेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुबारक है, इनका अदब वैसे ही ज़रूरी है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का अदब था। इंतहाई डिसिप्लिन के साथ आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ इस तरफ तशरीफ ले आए। आप लोग यहाँ पे ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत करने के बाद इधर से ही अपना लंगर लेकर अच्छा इस तरफ से जिसके दिल में जो तमन्ना है, जो नेक नियत है उसको हाजिर कर लें। अल्लाह ताला आज इस मिलाद के सदके, हुजूर के मोए मुबारक की ज़ियारत के सदके सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमाए। खुश नसीबों के नाम निकले, अल्लाह उन्हें ले जाए मदीना पाक में और हमें भी मदीना पाक में अल्लाह पहुँचा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रहमान राहिमीन, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुब्हान। मौला करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, दरगुजर फरमा, उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। वालिदैन जिंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की ताज़ीम, इज़्ज़त, खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सारे नबी तेरे घर के सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना, जान दो भाई जल्दी यार, जान दो जल्दी, जान दो का वोट लेके जाए। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के
ओके ना ना बना फिर कल पकड़ाएगा तू खैर ही नहीं कोई चलो मैं फिर हो गई हूँ खत्म होने चलते हैं घर जाके वेखते की है घर आया तो यह दो छापर सन ਇਹ ਬਦਾਮ ਕੁਝ ਬਦਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਖਜੂਰਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਵਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੂਸਰੇ ਚ ਵੇਖਦਾ ਦੂਸਰੇ ਚ ਵੀ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਤਰੇ ਖਜੂਰਾਂ ਇਹਦੇ ਟਾਫੀ ਬਦਾਮ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਪਿਆ बहुत पसीना है चलो सही है मेरी करते हैं तो आज की वीडियो पसंद आई लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो तो मिलते हैं नई वीडियो में अल्लाह हाफिज़।